Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, a show that answers your specific stock questions on the program. In case you're here for the first time, the WhatsApp number is on your screens. Send us your questions here along with your name, location and contact details. We'll be happy to address all those queries with our top market experts on the program over the next 50 minutes. In case you're watching our show on our YouTube platform, Business Today, you need to go to Daily Calls Live. Use the comment section there to send us your questions. I can happily pick up some of those questions also to address with our top market experts. So start pouring in all your questions, which we can definitely take up with our guests. But let's kickstart by understanding how are the markets doing as we are approaching the half-time trade, where we are at about a 55 point of a cut on the Nifty 24,150 odd mark. Large part of the sectors, including the broader markets, are in the red right now. It's only the IT stocks that are up by 3.3%. There's a smart rebound right after the earnings have kick-started for TCS first. And you can clearly see a smart run-up coming in on the IT pack. Media and auto stocks are the other pockets that are holding up. But look at India VIX. That's up by 9.5%. Again, indicating a lot of volatility that's back onto the D Street as well. So we'll keep an eye out on all of these pockets. Right now on the Nifty, the top gainers and the top losers will be coming up on your screens as well. We are looking at, of course, the big wins coming in from TCS, 5.5% of a rally coming in after earnings. HCL Tech 4% higher. You can look at Wipro, Infosys also up and about in the session. Bajaj Auto from the auto pack is also doing well. But on the declining side, you'll be able to see a lot of pain that's emerging from real estate, which is now seen some cuts after consecutive days of an up move, and some metal counters like Tata Steel, JSW Steel, Tata Consumer Products, Zomato and Bajaj Finserv are also among the laggards at this point in time. But let's welcome our guest on board. We have Nilesh Jain, Vice President of Technicals and Derivatives Head Research for Centrum Finserv, joining in. Welcome to you, Nilesh, and good to have you with us as always. I want to kickstart by understanding, as we are beginning this fresh and new week with again a lot of uncertainty and volatility globally, how would you trade the markets this week? Very good afternoon to you, Sakshi. Well, indeed, in fact, today's session is looking quite better. Reason being, we saw a gap down opening where the Nifty has found a very strong support at 24,000. Now, 24,000 is there is a cluster of support because 100-day moving average that is exactly placed at 24,000. And also, if you see on derivative front, we have seen huge amount of put writing at 24,000. That is acting as a strong support area. And from the same, we are witnessing a strong sort of a rebound. So we are expecting this pullback to continue maybe towards 24,250, 24,300. Immediate hurdle now is placed at 24,200. So overall, looks like more sort of a range-bound market, and good part is that the broader markets are doing quite well. So Nifty, mid-cap, small-cap index. So focus should be on the broader market stock-specific action. Whereas on index front, we can expect this consolidation to continue in the broader range of 23,800 to 24,400. That's the broader 600 point trading range for the week. Now narrow range could be 24,000 to 24,200. Whichever side it will break, we can expect another 100 to 200 point in that particular direction. Okay, got that. I hope that this has helped you out as well to get an overall sense of how the markets may perform this week, viewers. We will start taking some questions, but before that, Nilesh, if we could understand from you, since the earnings season has kick-started and this time around, the trend is in fact positive. Last time around when we had seen TCS came out with the numbers and the entire sentiment around the IT stocks had fallen sharply. This time around after the earnings, there's a smart rebound. You can see even in the run-up to the earnings, there was some kind of a recovery already taking place on the IT stocks. And beyond TCS numbers, we're again looking at some comfort that the street is drawing that the numbers may actually not be as bad as the previous quarter. How are you looking at the IT sector, particularly how to trade this? And TCS also post the numbers. What would you do? Well, absolutely, Sakshi. If you see the broader structure of the Nifty IT index, which is already underperforming since a long time, we have seen a continuation of a low top and low bottom formation. Now, on the result front, the worst has already been priced into, and that's the reason. If you see, we have seen a good base formation as well in the Nifty IT stocks as a whole. So, be it Infosys, TCS, HCL Tech, majority of the large cap counters have formed a very good base formation. So we can expect a follow-up move to continue on the upside on the back of a pullback that we are witnessing right now. So a strong round of short covering we are witnessing today.
The leadership is coming in the mid-cap IT space. So counters like LTM, Persistent, and also Coforge, that is looking positive. So across all IT stocks, we are expecting this pullback to continue. The setup looks positive. Merely a pullback trade is something that we are expecting as of now. So it's too early to call it as a bottom. But yes, from a risk and reward perspective as well, the IT index and IT stocks are looking favorable. Okay, fair point. Let's kickstart by taking some questions now, Nilesh. We have our first viewer asking you the question. This one is from Coimbatore that we've got the question. Jay Shri asks you, she's looking for Shakti Pump or Oswal Pump, either of these stocks to invest in right now. Which one would be a better pick, either of those two? For medium term, how would you pick that? Well, both the counters are looking sideways as of now, so there is no clear trend for both the Oswal pump and Shakti pump. But yes, from a positional perspective, one can accumulate Shakti pump at the current level because it is trading well above all short-term moving averages, formed a good base formation in the zone of 500 to 530. So that is acting as a very strong support area. So in a staggered manner, one can add on decline this particular counter as a positional bet just in case if it breaks above 630, then the target on the upside will open up for 700 plus. Okay, got that. I hope that this is something that you've now understood as to how should you be strategizing. From Bangalore, we have the next question. Basav Raj has sent us the next question, and he actually says that I have invested in Vedanta shares at the rate of 700, about 100 shares. Now the stock has been split into 5 shares, and I have all those stocks as well. Now I want to know what exactly should I do as a long-term investor. Should I keep accumulating my position in all these 5 stocks or not? Yes, we have seen that after the demerger, we've also seen a lot of performance on the positive end for the demerged entities post-listing. Your own sense, Nilesh, how would you advise investors of long-term on Vedanta? Vedanta post demerger, rest of the counters, we do not have much of a data because of the recent demerge story that's been out. But yes, as a group stocks, from a position perspective, I think one can stay invested because we have already seen a very good momentum in the Vedanta, that underlying counter itself, which is right now trading at 269. So although short to medium term, you may see some consolidation and some selling pressure at the high level. But if your view is more than 1 year, then I think you should stay invested in across all 4-5 demerged entity. And going forward, you can expect a decent return in the longer term. ओके गॉट दैट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आया है अरविंद का और ये पूछते हैं नीलेश सर, बजाज हेल्थ केयर आपको कैसा लगता है, क्या ये सही समय है इस शेयर को खरीदने का लॉन्ग टर्म के लिए? Bajaj Healthcare, that's trading at 343 right now, and the counter इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से, बट यस अगर लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव है देन आई थिंक वन कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, इसे ऐड करके चल सकते हैं बिकॉज 300 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर अगर ये 365 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 450 तक की अपसाइड ओपन हो सकती है। तो यस, आप इसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अ पोजीशन पर्सपेक्टिव। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेरी। दिस वन इज फ्रॉम अनुज सिंह और ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, जेएसडब्ल्यू का शेयर मैंने 224 के रेट पर 500 शेयर्स लिए थे। अगले 1 साल का टारगेट इसका क्या होगा? आज भी ये शेयर 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड अप हुआ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कुछ महीनों में। ओवरऑल आपका क्या व्यू पॉइंट है यहाँ नीलेश? अगर 1 साल तक के लिए भी इन्वेस्टर्स होल्ड करना चाहते हैं तो किस तरीके के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल साक्षी, देखिए काफी बेहतरीन सेटअप है। काउंटर ने आज एक नया रिकॉर्ड हाई लगाया है, एक लंबा कंसोलिडेशन पिछले ऑलमोस्ट 2 साल के अंतराल के बाद काउंटर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो यहाँ पर बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह होगी, जो होगा 330 का 330 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से। अगर लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव है, 1 साल होल्ड करना चाहते हैं, तो इसका मेजर सपोर्ट आपको देखना होगा जो फिलहाल 310 के आसपास प्लेस है। मेरे ख्याल से 1 साल के नजरिए से काउंटर में पोटेंशियल है कि ये 400-450 तक की जोन में जा सकता है। ओके गॉट दैट। उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी आपको एक ओवरऑल राय मिल गई हो। अगले 1 साल के लिए 400 450 के भी ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रिकॉर्ड हाई आज देखने को मिल रहा है और आगे भी पोटेंशियल नज़र आता है इस स्टॉक में। नेक्स्ट सवाल है मोहित यादव का, ये लिखते हैं, नमस्ते साक्षी। नमस्ते आपको भी मोहित।
और ये लिखते हैं एनएससी के बारे में। ये पूछना चाहते हैं आपसे कि एनएससी के आईपीओ में निवेश करें या जब एनएससी लिस्ट हो तब उसमें निवेश करना चाहिए, और अगर 5 साल के लिए इनका नज़रिया हो तो क्या बीएससी में इन्वेस्ट करें या फिर एनएससी भी बीएससी की तरह रिकॉर्ड हाइज और वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये सवाल है इनका। देखिए, ये तो बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि आईपीओ के बाद कैसा प्रदर्शन होगा एनएससी के शेयर में। बट यस, बीएससी के बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि इसका काफी लंबा अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। और बिल्कुल अगर यहाँ से भी एक पोजिशनल नजरिया है तो बीएससी एक बेहतर विकल्प हो सकता है जिसके अंदर आप रेगुलर इंटरवल पर स्टैगर्ड मैनर पर इसे खरीदारी करके चल सकते हैं। काउंटर के अंदर काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा था, और मेरे ख्याल से अगर 1 साल के ऊपर का नजरिया है, अगर 3 से 5 साल का नजरिया है, तो बिल्कुल आपको बीएससी के स्टॉक में एक एसआईपी के थ्रू और मे बी एक स्टैगर्ड में एक्युमुलेशन करके चलना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर 5,000 के ऊपर निकलने का पोटेंशियल है। बट यस, उसके पहले ये 3,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो अगर आपको निचले स्तर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब उसे ऐड करके चल सकते हैं। एनएससी के आईपीओ के लिस्ट हो जाने के बाद वहां पर थोड़ा सा इंतजार कर ले तो बेहतर होगा। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज फ्रॉम विनीता गुप्ता। ये लिखते हैं, हाय साक्षी, हाय नीलेश सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू विनीता। ये लिखते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज 700 के भाव पर लिया हुआ है, यहाँ पर किस तरीके की उम्मीद है, कैसा रहेगा ये शेयर शॉर्ट टर्म में? बिल्कुल, देखिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम आज हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अक्रॉस ऑल आईटी स्टॉक्स मोमेंटम आज देख रहे हैं, बट कंपैरेटिवली टाटा टेक का स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो बने रहें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की सलाह होगी जो होगा 725 का, 725 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। इमीडिएट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 770 का। 770 के ऊपर अगर ये निकलता है तब 820 और 850 तक के भी लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेरी। दिस वन इज फ्रॉम आयुष। ये प्रयागराज से हैं और लिखते हैं, हेलो मैम, बीएलएस इंटरनेशनल पर मुझे राय चाहिए। 254 पर मैंने 700 शेयर्स लिए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए स्ट्रक्चर तो काफी वीक नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर सीरीज ऑफ लोअर टर्म एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन, साथ ही साथ सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे काउंटर ट्रेड हो रहा है। फिलहाल 238 पर है। यहाँ पर अगर कोई भी पुल बैक मिलता है आपको मे बी टूवर्ड्स 260 270 तक पुल बैक को यूज करना चाहिए पोजीशन में से एग्जिट करने के लिए, अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से लिया हुआ है तो। अगर लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 200 के स्टॉप लॉस से आप एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुंजन है जयपुर से, ये आपसे 2 शेयर्स के ऊपर राय लेना चाहती हैं नीलेश। पहला शेयर है इनका एरिस इंफ्रा, जहां पर 120 पर इन्होंने पोजीशन अपनी बनाई हुई है। दूसरा शेयर है श्री लोटस डेवलपर्स, जहां पर 142 पर इन्होंने खरीदारी की है। दोनों में आपसे पूछना चाह रही हैं क्या होल्ड करके चलें या किसी भी शेयर पर और ऐड करने की एडवाइस अभी आप देंगे या नहीं? फिलहाल लोटस डेवलपर्स 144 पर ही चल रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी परचेज प्राइस से। एरिस इंफ्रा का भी शेयर उठा लेते हैं और देख लेते हैं अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है। 120 की इनकी खरीद है। टाइम फ्रेम तो उन्होंने सजेस्ट नहीं किया है कि कितने समय तक ये बने रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपसे दोनों में जानना चाहती हैं स्ट्रैटेजी क्या हो। यस साक्षी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस जो फिलहाल 109 पर ट्रेड कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर साइडवेज टू वीक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तो मेरी सलाह होगी कि अगर 120 के लेवल मिल जाए फिर से तो वहां पर एक बार के एग्जिट कर जाएं, क्योंकि साइडवेज और कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करें कि कंटिन्यू हो सकता है। एक रेंज में फंसा हुआ है 100 से लेके 130 का इसका एक दायरा है, तो इसी रेंज में गोइंग फॉरवर्ड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर 120 के ऊपर मिलता है तो एक बार एग्जिट कर जाए। लोटस डेवलपर देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी जब से ये पर्टिकुलर काउंटर का आईपीओ आया है पिछले साल, तब से यहाँ पर लगातार दबाव देख रहे हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रेटेजी होगी कि अगर आप पुल करना चाहते हैं तो 138 का स्टॉप लॉस लगाएं और 154 तक का पुल बैक फिलहाल हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा और इंतजार करना चाहते हैं, लंबा नजरिया है, तो यहाँ पर 138 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने भी रह सकते हैं। बट आप इस पर्टिकुलर रियल स्टेट में बेहतर विकल्प की तरफ स्विच कर सकते हैं। यू हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल कंपेयर टू लोटस डेवलपर, तो वहां पर एक बार के लिए आप नजर रख के चल सकते हैं।
ठीक है। दीपक पटेल हैं, ये लिखते हैं हाय साक्षी, आई हैव डैम कैपिटल, मैंने 283 पर लिया है 150 शेयर्स, शुड आई एवरेज और बुक माय लॉसेस इन डैम कैपिटल राइट नाउ? यानी कि इनकी खरीदारी से नीचे आ चुका है ये शेयर, एडवाइस क्या हो सकती है यहाँ पर नीलेश? क्या निकल जाना ही बेहतर होगा या फिर कुछ उम्मीद लगती है शेयर में अभी? देखिए उम्मीद थोड़ा समय दे तो बिल्कुल उम्मीद बन सकती है, लेकिन समय थोड़ा लंबा हो सकता है। काउंटर हम्म। लगातार पिछले कुछ समय से दबाव दिखा रहा है और कोई भी पुल बैक इन बिटवीन हम देख रहे हैं, वहाँ पर फिर से बिक वाली ही अभी होती नजर आएगी। हालांकि आज के सेशन में 6% का उछाल जरूर है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो 175 180 तक आप पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और 150 के आसपास का जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां पर सबसे पहले टेलिंग स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। अगर लंबा नजरिया है तो मेरे ख्याल से एक बार के लिए पुल बैक पर एग्जिट करके बेहतर विकल्प की ओर स्विच कर सकते हैं। इसी स्पेस में से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर स्पेस में डैम कैपिटल की बात करें तो 175 के ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ पर तेजी बनेगी, तब तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू होगा। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन देन। दिस वन इज फ्रॉम कश्यप, ये लिखते हैं मेरे पास कल्याण ज्वेलर्स के शेयर हैं 400 के प्राइस पर, तो क्या अभी भी होल्ड करें या सेल कर दें? कल्याण ज्वेलर्स में पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इनफैक्ट जब से कंपनी ने Q1 बिजनेस अपडेट्स लगाए, लगातार ये शेयर बढ़ रहा है। आज भी इस शेयर में 10% तक की ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। अगर आप पिछले एक हफ्ते का ही चार्ट देख लेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने पिछले एक महीने में तो 37% का उछाल दिखाया है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम उस चीज़ का उछाल जो है आपको इस एक हफ्ते में नजर आया। देखिए एग्जैक्टली 37-38% तक की रैली पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है शेयर में। अब क्या ये बबल जोन में आ रहा है या कि इसे बेचकर अब निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए नीलेश जी। बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए इस महीने में सो फार काउंटर 35% का उछाल दिखा चुका है, तो समझदारी तो इसी में है कि आप थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पर बांध ले। एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। रिमेनिंग 50% आप राइड करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से तेजी बनी है, काउंटर में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 550 580 तक की अपसाइड और यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इन लेवलों पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है सीमा घोष का, ये रोलेक्स रिंग्स के ऊपर आपसे पूछना चाह रही है। 156 की खरीद है, रोलेक्स रिंग्स कैसा लगता है आपको? देखिए खरीदारी 156 की है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से पुल बैक 150 तक का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि काउंटर में रिसेंट गिरावट के बाद एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जो 134 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सबसे पहले 134 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर पुल बैक 150 155 तक का मिलता है, तब एक बार के लिए यहाँ पर एग्जिट करके चल सकते हैं। Okay, let's take the next one. This one is from one of our viewers. Again on our WhatsApp, we've got this question. Lavish from Indore. ये लिखते हैं 400 बोरोसिल रिन्यूएबल के शेयर्स हैं इनके पास, बोरोसिल रिन्यूएबल के, और 645 पर ऑलरेडी इन्होंने खरीदा है। अब पूछना चाह रहे हैं इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और कैसे ट्रेड करें इस शेयर को? देखिए हाल फिलहाल की खरीद नजर आ रही है, 643 पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। 600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 600 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, अन्यथा जिस हिसाब से काउंटर की वॉलेटिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काउंटर थोड़ा सा वाइड स्विंग दिखा सकता है। ऊपरी स्तर पर 675 से 700 तक का पुल बैक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी और गिरावट हो, तब वहां पर इसे ऐड करें और 600 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, गॉट दैट। इनफैक्ट ये स्टॉक पिछले हफ्ते थोड़ा खबरों में आया था, कुछ ऐसे बज़ है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी कि प्रमोटर्स कुछ स्टेक डाइवेस्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से हमने थोड़ा सा इस स्टॉक में मोमेंटम देखा था। फिलहाल के लिए आपको गाइडेंस दे दी गई है, इसे आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। रतन दुबे का सवाल है, ये आर पावर में
3,000 शेयर्स हैं इनके पास, 29 की बाइंग है। अब पूछना चाहते हैं होल्ड करें या नहीं रिलायंस पावर के शेयर को। बीच में एक पीरियड आया था जब रिलायंस पावर के शेयर्स एकाएक भागने लग गए थे, लेकिन हमें इसका पास्ट भी नहीं भूलना चाहिए इन्वेस्टर्स को, कि कैसे काफ़ी लंबे अरसे तक इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पेन सहा है इस स्टॉक में। फिलहाल 25 के अराउंड ये शेयर चल रहा है, आपने 29 पर खरीदा, तो आई थिंक कि जो वो पीरियड था जिसमें एकाएक मोमेंटम आ रहा था उसके पीक पर आपने शायद खरीदा होगा। उसके बाद एक बार फिर से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने लग गया था। नीलेश जी, कैसे आप राय देंगे यहाँ पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम था जो कि एक काइंड ऑफ अ ट्रैप था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए। उसके बाद काउंटर में लगातार हम पिछले कुछ समय से गिरावट देख रहे हैं और स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये गिरावट जो है वो और कंटिन्यू हो सकती है। 24 के नीचे ये काउंटर फिसलता हुआ नजर आ सकता है और 23 और 22 तक के भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 24 का है। तो 24 की स्टॉप लॉस से अगर बने रहना चाहते हैं पुल बैक की एक्सपेक्टेशन में, तो बने रहें। अगर पुल बैक 26, 27 या 28 तक का देखने को मिल जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको लॉन्ग में से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश फिलहाल इमीडिएट बेसिस पर नजर नहीं आ रही है। ऑलराइट, ओके। एक और सवाल हमारे पास आया अगेन हमारे व्हाट्सएप के दर्शकों से, और ये सवाल हमारे पास आया है भास्कर का हैदराबाद से। डॉक्टर रेड्डीज़ में अगले 2 से 3 साल के लिए एक फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, क्या ये समय और प्राइस सही है डॉक्टर रेड्डीज़ में एंट्री लेने के लिए? पिछले हफ्ते थोड़ा प्रेशर था इस स्टॉक में, क्योंकि कंपनी की जो सेमाग्लूटाइड जो डिवीज़न है वहाँ पर कुछ डिलेस फेस हो रहे थे और उस वजह से ये शेयर प्रेशर में आया था। 1231 के लेवल्स पर आपको कैसा लगता है चार्टिकली? देखिए, इस सप्ताह, इनफैक्ट पिछले सप्ताह यहाँ पर एक डिप हमने देखी थी। इस मंथ में अब तक काउंटर लगभग 8% का करेक्शन दिखा चुका है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से वीक हो चुका है, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, या तो फिर मल्टीपल ट्रांच में इसे ऐड करके चल सकते हैं। अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली काउंटर का पोजीशन स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आता है, तो ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट थोड़ा सा इंतजार करें, 1140 के आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। तो जैसे केस अगर आपको ये 1140 से 1180 की जोन में मिलता है, तब यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। 1020 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। और पोजीशन लिहाज से तो स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। Okay, and Lish, towards the end, any key specific stock ideas that you'd like to share with our viewers today? Yes, definitely. So first of all, the space that is doing well today is the IT. So IT counters are looking strong for a further pullback momentum to continue. So we are expecting specifically mid-cap ITs to do well. So within mid-cap IT, names like Mphasis, Persistent, Coforge, these are the couple of stocks that are on our radar, and we are bullish on all these counters. But specifically, Persistent is looking positive at current level. One can go long, keeping a stop loss below 5,000. For upside momentum, we are expecting towards 5,300 to 5,400. Another stock that is looking positive, that's Grow. Grow has also given a good breakout today, so we are expecting a short-term momentum trade in this particular counter towards 212 to 216, and one can keep a stop loss below 203. Okay. Let's take the next question. This one is from one of our viewers. This is one more question we'll just squeeze in before we let you go. Mohit Yadav wants, okay, Mohit's question we've taken. Sumit wants to know, I'm from Kolkata. Delivery के शेयर सर आप कैसे देखते हैं 481 पर? डिलीवरी अगर 481 पर लिया हुआ है तो एक बार के लिए बने रहें और 500 का यहाँ पे टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। पोजीशन पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 530 540 तक के लेवल नेक्स्ट इनफैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड इट शुड होल्ड अबव 500। सो 500 का यहाँ पर टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। Okay, got that. Thank you so much, Nilesh, then, for being with us as always and guiding all our viewers with their queries. It's a pleasure, as always, to host you with us on Business Today. Good to have you with us and hope you have a fantastic week ahead. We look at, of course, some of the big momentum movers before we go on and welcome our other guest viewers. We have a lot of momentum happening on Just Dial. 20% kind of a move. This is the biggest single day gain that you've seen on Just Dial today. Right after 2 years or so multi-year high in a kind of momentum single day move that we have seen at 676 today. You're looking at Hester Biosciences, another 20% circuit for this one. Puravankara from the real estate pack, despite the fact that real estate index is down in session today, it's up by about 16 odd percent.
You're looking at Epigral, that's up by 12% in the session today. Let me also help you understand something within the automotive sector. PPAP Automotive is up by over 10% today. Kalyan Jewellers, we've already marked out. It's been a consecutive mover. You're looking at some names like Ramco Systems, that's also moving higher. You're looking at CE Info Systems, that's up and about in the session as well. You also have TTK Healthcare, that's also up in the session today. So a lot of these broad market big movers can be seen that are contributing to the overall market move. But if you see on the markets, on the Nifty, 22 points of a loss. So we are recovering from the low point as well. 24,182 can be seen on the Nifty right now, about 25 points lower. But we've climbed to the day's high. Maybe in the second half, you will continue to see maybe green coming back onto the Nifty too. IT, of course, is the top contributor, 3.5% higher for the IT index as a whole. I guess all the contributors there will be in the positive end. Let's actually pull up some top winners from the IT pack for you to see. TCS is up by 5.5%. It's topping the charts. HCL Tech is up 5%. Tech Mahindra is up 3.3%. Infosys, Emphasis. You have LT Mindtree. Then you also have Wipro, Oracle Financial Services, Coforge, Persistent. All of these are the top big winners from the IT pack today. Again, from the auto space, it's just, of course, holding up above the flat line, but still into the gains right now. Real estate is down by 1.3%. Metals are down 1%. FMCG down by 0.5%.